Let me know once you're live. Nilesh Datta, start. Hello, good evening, everyone. We sincerely apologize for the delay. My name is Nilesh Shetty, and this evening we're going to be talking about various concepts of vaccination. A humble request if you all can just keep your cell phone mute so that it just doesn't repeat. So yes, this event has been brought about by CDF Bharat, IMA, and CGP Bhiwandi. Band Sangha Mumbai's Bhiwandi to Badlapur region, Ashna Cares, and the guest here is Dr. Kushal Chidgupkar. He is MBPS and he's done his MD in pulmonary medicine. He's also done his diploma, European diploma in respiratory medicine from Paris. At present, he's working at Jasmine Hospital and Hello, research. hello everyone. Can you hear me? I'm really sorry for the delay. I was stuck in the work. Yeah. So yeah, Sorry, doctor. So, yeah, doctor, yeah. you all here. Everyone's been waiting. They've Yes, yes. heard the Sorry, everyone. Yeah, yeah. I think you're good to go, and everyone is eagerly waiting for this. While we start, Yes. Surely we do. while we First of all, start this, yeah, good. uh, Yeah, can I? Can I? Yeah, sure, sir. yeah. First of all, good evening, everyone. Sorry for the delay. There was some technical issue as well as I got little late. I'm really sorry for that. Yeah. So here I really appreciate by the initiative taken by the organization for to make people aware about all these things and vaccination, corona, and everything. And this is really needed at this point of time. And really, I thanks them to for organizing such a wonderful webinar or webcast. And thank you for inviting me for this. Thank you. Thank you, Doctor. I think we should not take much of anyone's time. I'm going to quickly go ahead and introduce the partners who made this the talk possible. First of all, I'd like to speak about CDF Bharat. CDF Bharat is a recently formed NGO which is established on the 28th of March 2021. Their mission is to promote and create a better and a powerful society. They do a lot of things with regards to the social activities. They've got around 60 volunteers. I'm sorry, guys, I'm going to cut it really short because I've got a lot of audience live waiting for the doctor to speak. So I'm going to bring it out to our other partners. We've got IMA, Indian Medical Association. Everyone knows about it. It's an international organization of the doctors and modern science. Indian Medical Association, Bhiwandi, is a very active branch which is working for members and the society. We also have CGP as one of our partners. CGP is College of General Practitioners. It's a subcommittee of IMA. Dr. Ujwala Bhardapurkar is the president for the third time. She's doing a fabulous job. Dr. Sanjeev Kumar Ratnapurkar is the secretary. Members of IMA have been doing an incredible job during pandemic, wherein they've been supplying, PPE kits, mask, oxygen flow meters, shields, medicine, incubation chambers to police, hospitals, and various societies. They also run various educational programs in schools, and these are a few things that has been done. Our next partner is Band Sangha Mumbai. Band Sangha Mumbai's regional body, that is Bhiwandi to Badlapur region. I myself am the treasurer of the youth wing of Band Sangha Mumbai. This is a non-profit organization which is working towards the cultural, social, economical, and overall development of Band's community in Mumbai. However, they've got college institutes, they've got auditoriums, and a lot of them are the so-called restaurants have been run by a lot of members of this organization. So there are 9 regions, and one of the region is Band Sangha, Mumbai's regional body, that is Bhiwandi to Badlapur region. The organization is headed by our president, Mr. Chandrahas K. Shetty, and his managing council. The regional body is run by the regional chairman, Dr. Shri Ravindra Y. Shetty. It's also headed by Eastern Suburb Coordinator, Shri Subhaya A. Shetty.
Then we have Satish N. Shetty. He is the regional convener who was the ex-chairman of the Excuse region. me. Hey, I'm just interrupting 1 minute. Sure. You're not live yet on Facebook. We are, sir. No, we are not able. As we are looking, we are not able to see. So that's why I just interrupted you. Okay. I think we are live, sir. I think we are pretty much live. The system shows that we're live. I'm sorry. And we also have Srimati Praveena P. Shetty, who's the regional Mahila Vibhag chairperson. Shri Manjunath M. Shetty, who's the regional youth wing chairman. And one important person is Dr. Sagar D. Shetty, is the youth wing chairman of the Ban Sangha Mumbai, who's done a lot of work with his team over this COVID time. So last but not the least, we have Ashna Cares, doctor, and Ashna Cares is again a non-profit organization which was established in September 2020, and they've done a lot of work for people in and around Mumbai. So now, as I said before, we've spoken about the introduction about our partners. Doctor, will not waste much of your time, and let's get to our the questions that we have here. And firstly, doctor, we'd like to thank you because I'm sure during this difficult time, it's really difficult for you, wherein you have to spend time with your family. Then there are thousands and thousands of patients who come in, and it's really difficult. So, what do you want to say, sir, before we start with our questionnaire? Can I? So yeah, it's really a difficult time right now. It's but thing is that when we see that patients are getting cured, that the happiness is much beyond that whatever the pain or whatever we are facing. That's the only relief, or that's the only happiness what we are fighting for. But that's what I would like to say. Fantastic, doctor. Doctor, a lot of things have been spoken. Let's keep it as a conversation so that a lot of our friends who are listening, they should not feel like this is yet another a session that's been organized. Let's keep it more conversation, and we'll also have a lot of friends talking about their doubts as well. So I have my very first question, doctor. If you can just briefly describe about the vaccine, how does it work? So first of all, I would like to ask whether we will go in a mixed language, first of all, as we have all the people here. So we would like to go in English, Marathi, Hindi. So I'm going to ask the audience, doctor, what language they are comfortable in. So I think we will go in mix, so everyone will understand. It's for so. बिल्कुल डॉक्टर. Yeah. So हम अभी आप बात कर रहे थे कि वैक्सीन क्या होता है. So वैक्सीन एक ऐसी वैक्सीन इज द थिंग जो देने से हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट या फिर डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत मिलती है. दैट इज वैक्सीन. सो पहले वैक्सीन के पहले हम पता वैक्सीन से क्या मिलता है, हमें तो इम्यूनिटी मिलती है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी के बारे में. सो इम्यूनिटी ये है कि हम जब आते हैं तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी. फर्स्ट इज पैसिव इम्यूनिटी जो हमें होती है हमारे पास, और वो जनरल होती है. जो कुछ भी हमें इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो हमें हेल्प करती है. So it is not specific for everything or a disease or that kind. Okay. So दूसरी हमारे पास जो इम्यूनिटी है that is a acquired immunity. So acquired immunity में दो टाइप्स होते हैं, एक है एक्टिव एंड सेकंड इज पैसिव. एक्टिव इम्यूनिटी है जो हमें एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो हम एक्वायर करते हैं, वो हम मतलब हमें मिलती है. कहाँ से? तो हम जब इन्फेक्शन होता है हमें, या फिर व्हेन वी गेट वैक्सीन, from there we get it. That is a active immunity. And second is passive immunity. So that is first is active and passive. So active में दो तरह की, जैसे मैं अभी बता रहा था कि एक है जो हमें इन्फेक्शन से मिलती है, और दूसरी है जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है जो हमें वैक्सीन से हम पाते हैं. वो है जो वैक्सीन के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं. That is the active immunity which we are getting. So that is artificial one. Right. और इन्फेक्शन के बाद जो मिलती है that is a natural one. But हम ये नहीं कर सकते कि सबको इन्फेक्ट किया जाए, और क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे
that are very much pretty much higher than what vaccination will have. So vaccination is the best way for getting a active immunity in acquired form. Second one is passive immunity in acquired. So passive में भी दो फॉर्म है, एक है नेचुरल जो हमें अपने माँ से मिलती है, माँ के दूध से मिलती है, या फिर हम जन्म लेते हैं तो हमें ट्रांसप्लासेंटल जो एक रूट होता है, जैसे उससे माँ से बच्चे में ट्रांसफर होती है, Right. वो एक इम्यूनिटी होती है. और दूसरी इम्यूनिटी है हम डायरेक्टली उसे आर्टिफिशियल मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडीज हम देते हैं. अब हम बात करते हैं व्हाट इज एंटीबॉडी एंड एंटीजन. जो वायरस हमें इन्फेक्ट करता है वो एंटीजन देता है, दीज आर प्रोटीन्स, और इसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी डेवलप करती है दैट इज अ एंटीबॉडी जो उसके साथ फाइट करती है. सो दिस इज अ बेसिक सिनेरियो एंड द वैक्सीन इज अ थिंग व्हिच विल गिव अ मतलब जो हमें वायरस के या व्हाटएवर इन्फेक्शन इट इज उसके अगेंस्ट फाइट करने की ताकत देती है. जो अगर कुछ नई चीज अंदर आती है वो हमारे बॉडी को अगर पहले से थोड़ी सी पता होगी तो उसके पास उसके साथ फाइट करने की ताकत पहले से होगी. अगर कुछ भी एकदम नया आएगा तो हमारी बॉडी थोड़ी सी बौखला जाएगी या फिर थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाएगी. तो वो ऐसा कंफ्यूज ना होके उसके पास अगर थोड़ा सा कुछ होगा जो उसको अगर पता होगा थोड़ा सा कि हाँ ये आ सकता है बाबा, ये हमें पता है, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने की उसके पास थोड़ी सी ताकत होगी. और उसके वजह से हमें जो इन्फेक्शन इज अ डिफरेंट फॉर्म एंड डिसीज इज अ डिफरेंट फॉर्म. जो हम इन्फेक्शन जो है वो होगा, पर डिसीज फॉर्म करने की जो ताकत होगी वो वायरस की या फिर वाटर बैक्टीरिया वाटर इन्फेक्शन इट इज उसकी वो जरूर वैक्सीनेशन से कम. Right. So, hello. Yes, I am hearing. So Yes, sir. can we go ahead? Yeah. Yes. So, doctor, I mean, मैंने थोड़ा satisfy किया होगा या कुछ और. हेलो. हाँ डॉक्टर, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच में. ब्रेक हो रहा है, अभी आ रहा है क्लियरली. It's much better डॉक्टर. So मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर, while you've been ये आप जब बता रहे हो, you're talking about immunity, there is lot that has been talked about herd immunity amongst Indians, more importantly. Can we elaborate on that? Yes. First of all, what is herd immunity? Herd immunity is a immunity जो हम अगर वैक्सीनेटेड, बहुत लोग जब वैक्सीनेट होते हैं या फिर बहुत लोग जब इन्फेक्ट होते हैं, हमें उनके साथ रहने से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं. सो हर्ड इम्यूनिटी फॉर डिफरेंट इन्फेक्शंस विल बी अ डिफरेंट थिंग. जैसे कि पोलियो को जब 80% लोगों को वैक्सीनेट किया गया था उसके बाद हमें हर्ड इम्यूनिटी मिली थी. जैसे मीजल्स के लिए जो हमने पूरा देवी जिसको हम बोलते हैं तो हमने पूरा मिटा दिया है ऐसा हम कहते हैं, तो वैक्सीनेशन के बलबूते हम वो कर पाए हैं. तो उस पे हमें 95% लोगों को हमने जब वैक्सीनेट किया उसके बाद हमें 5% लोगों को हमें इम्यूनिटी मिली. वैसे कोरोना का है, कोरोना वैक्सीन अभी वी आर अंडर स्टडी, अब हम दे रहे हैं अभी हम लोगों को, तो हम जैसे जैसे देते जाएंगे वैसे हमें पता चलेगा कि कब हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी. So this is the thing. Perfect. So doctor, as I said, I mean this makes a lot of sense. I mean herd immunity पहले लोगों को लगता है, मुझे भी एक फीलिंग था कि herd immunity ऐसा है कि हम डेवलप कर लेते हैं. अरे अभी कैसा है कि वी इंडियंस है, हम लोग ऐसा क्रिकेट खेला है बचपन में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा जो पोल्यूशन लेवल है ज्यादा है. So that's a misconception, and thank you for clearing that to us. I'll quickly come down to my next question, doctor. Now, ये कैसा है? There are a lot of vaccines that have been developed in a very short span, and which was the need of the hour कि जितना जल्दी वैक्सीन बनेगा, जितना जल्दी ये लसीकरण जो बोलते हैं हिंदी में, जैसे ही होगा उसकी वजह से क्या होगा कि इम्यूनिटी आएगा. बट इसकी गारंटी क्या है? इज इट सेफ? व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स डू यू थिंक ऑफ गेटिंग वैक्सीनेशन? सो अभी कोरोना वैक्सीन जो भी अवेलेबल है वो हर मतलब कुछ एक स्पेसिफिक लोगों में छोड़ा जाए, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन है उनमें छोड़ा जाए, तो बाकी सब में वो सेफ है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो ले सकते हो. उनके साइड इफेक्ट्स अभी वो जो बोला गया था कि उनसे कोई और बड़ी बीमारियां और एग्रीवेट हो सकती है, उस पर स्टडी के बाद ऐसा पता चला कि वो वैक्सीन के वजह से नहीं थी. जो सिंपल कोई भी हम बचपन से भी कोई वैक्सीन लेते हैं या फिर इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन है या फिर कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो हमें थोड़ा सा लाइक सर्दी जुकाम हेडेक बॉडी पेन
थोड़ा सा बुखार आना, ये सब चीजें अपना वायरल, अपना खुद का, जैसे मैंने बोला, इम्यून सिस्टम अपनी जैसे चार्ज होती है, स्टिमुलेट हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा होना स्वाभाविक है और वो होगा, उसके लिए डरने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिंपल हम अगर पैरासिटामोल लेंगे तो उस पर वो कंट्रोल हो जाएगा। या कभी कभी अभी कोरोना के वैक्सीन के साथ थोड़ा सा बहुत लोगों में देखा गया कि थोड़े उनमें ऐसे व्हाट वी कैन से रैश जैसा थोड़ा सा हो गया, पर वो भी पूरा सेटल हो गया। ऐसे किसी में भी कोई सीवियर साइड इफेक्ट कोरोना के वजह से हुए नहीं है और इट इज सेफ टू टेक। मैं आज यहाँ पे पूरा एकदम होशो हवास में कह रहा हूँ कि वो पूरा लेने के लिए सेफ है और हमारे पास अभी लेने के अलावा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है और वो लेके ही हम सबको बचा सकते हैं, वही मैं बोलूंगा। so डॉक्टर, does that mean कि बोलते हैं ना, एक साइड है क्या बोलते हैं कुआं और एक साइड नदी, ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं जी, कि अगर कोरोना एक साइड नदी है, है एक साइड पूरा समुंदर है, ऐसा हम बोलेंगे। पर दूसरे साइड जो है वो इट्स ओके ना, माइल्ड साइड इफेक्ट्स विल बी देयर, लाइक थोड़ा थोड़ा कफ होगा, थोड़ा थोड़ा सर्दी होगी, पूरा सेटल हो जाएंगे ना। थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है पर यू हैव टू थोड़ा सा, पर वैसे तो हर एक वैक्सीन के बाद थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार आना, हेडेक होना, ये होता ही था पहले भी। सो तब हमने कोई मतलब तब हम बच्चे थे ना, तो हमको पता नहीं चलता था, तो ऐसा है ना अभी। सही सही और कहा अभी डॉक्टर। अभी अभी बच्चों में वैक्सीन हम अभी नहीं दे सकते, जैसे हम बोल रहे थे जिसमें नहीं देना है बच्चों में, अभी अभी इट इज अंडर स्टडी, धीरे धीरे स्टडी हो रहे हैं और गवर्नमेंट एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू वर्क हार्ड ऑन दैट। और अभी 18 साल के ऊपर हम दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उनको 12 साल के ऊपर का स्टडी चल रहा है बच्चों में भी और उनके छोटे बच्चों में भी देंगे। और अभी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी स्टडी चल रहा है, सबके लिए, अभी ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज के लिए भी, सबके लिए स्टडीज आर गोइंग ऑन और धीरे धीरे वैक्सीन सबके लिए आ जाएंगे। Right, doctor. So we'll have to just wait and watch till the right Yes. time, you know. Yeah, as we know that this is a new disease, everything was new for us. न्यू मतलब ये वायरस वाज न्यू, नॉट न्यू, बट वायरस में कैसे होता है ना, वायरस में एक ताकत होती है कि वो अपना नया नया फॉर्म लेके आता है, हर बार आता है तो नया फॉर्म लेके आता है, उसको म्यूटेशंस बोलते हैं वायरस का। Right. तो ये जो प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन्स, वो अपना अपना नया नया रूप लेते हैं, तो वो अपने बॉडी के लिए वो न्यू होता है। और न्यू होने की वजह से अपने को पता नहीं था कि कितना कैसा वो एक्ट करेगा, कैसे उसके रिएक्शंस होंगे। तो उस हिसाब से धीरे धीरे ही इट्स ऑल अंडर स्टडी एंड वी आर थैंकफुल कि इतने लोग काम कर रहे हैं, ऊपर लाखों करोड़ों लोग उस पर काम कर रहे हैं और आज कुछ तो फॉर्मुलेट, नए नए ड्रग्स आ रहे हैं, ये सब कुछ नया नया फॉर्मुलेट करने की बात हो रही है। True, true. Doctor, coming on to the next question, कैसा है कि you know, suppose someone got vaccinated. Suppose I take a vaccine, okay, for say I take a first dose or the second dose, and मुझे फिर से suppose because the efficacy is less, तो अगर if I get contracted by the virus, would I be infecting someone else? Would I be responsible to infect someone else? पोस्ट वैक्सीन, Post vaccine, yes. वेल सो व्हाटएवर, आपको कभी भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो जो उसका जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन में आप जो लाइक अभी हम 14 डेज या फिर 14 डेज जो अपना क्वारंटाइन पीरियड है या फिर इन्फेक्टिविटी का पीरियड है, उसमें हम वैक्सीन लिया हो या न लिया हो, हम इन्फेक्ट कर सकते हैं दूसरों को। तो हमें अगर इन्फेक्शन है तो हमें ये जरूर देखना है कि हम दूसरों को ना अफेक्ट करें। जैसे कि हमारे पास जो एल्डरली पीपल है, जो बच्चे हैं, तो इनके लिए अभी, बच्चों के लिए तो अभी अपने पास ज्यादा कुछ अवेलेबल भी नहीं है, तो उन्हें हम ना अफेक्ट करें, ये हमें हमारी केयर लेनी है। हम वैक्सीनेट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पर जरूर वैक्सीनेशन लेने से अपना जो डिसीज है, जो अभी जो देखा गया है पोस्ट वैक्सीनेशन, जो जिन लोगों ने पूरे 2 डोज वैक्सीन के कंप्लीट किए हैं, उनको जो डिसीज हुआ है उसकी सीवियरिटी जरूर कम है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को हो गया बहुत ज्यादा, वी कैन अंडरस्टैंड, बट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन में है उनको जरूर जो उनका जो इन्फेक्टिविटी जो या फिर डिसीज जो है, दैट वाज अ माइल्ड डिसीज व्हाट दे हैड। Right. And also, doctor, I mean, kaisa hai ki while we are chatting, I have a lot of our friends who are going to be asking questions. Just want to tell them ki we're going to be having a Q&A session after this this interaction with doctor, and your queries will be cleared because we already have a set of questions which we have asked a few people, and then based on that we are conducting this session. So अगर आपका कोई भी query होगा, हम डॉक्टर हैं यहाँ पे, will get it cleared. All right. So moving on to the next question, doctor.
Now, in case I have been infected by the COVID-19 virus or the new mutant, if after that, if I take a vaccine, would that cure me? सो वैक्सीन इज नॉट अ क्योर फर्स्ट ऑफ ऑल. सो हम देखा जाए तो वैक्सीन किसी चीज की ट्रीटमेंट नहीं है. वैक्सीन इज अ प्रिवेंटिव मेजर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो वैक्सीन लेने से हमें जो डिसीज होने का जो संभावना है वो कम होगी और इसकी सिवियरिटी कम होगी. तो उसके वजह से दैट इज अ मेन थिंग. इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट क्लियरली. सो जो अगर अगर आपको डिसीज हुआ है और आपने वैक्सीन लिया, ऐसे नहीं करना है. तो उसके बाद हमें गाइडलाइंस है कब वैक्सीन लेना है, कैसे लेना है, उस हिसाब से ही हमें जानना है. Right, doctor. Doctor, now there has been a lot of confusion. काफी confusion है लोगों में कि what should be the ideal gap, because पहले government said it was 4 to 6 weeks, then it was 6 to 8 weeks. So what is the ideal gap between different vaccines in India that is available in India? या सो अभी तो इंडिया में हमारे पास 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है जो अभी स्टडी करके जो सबको हम दे रहे हैं. दैट इज वन इज कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका ने किया है रेडी. एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इन लोगों ने मिलके जो बनाया है. एंड सेकंड इज दिस कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक अपना इंडियन मेड है. वो ऐसा बोल सकते हैं. ये दूसरा भी इंडियन मेड ही है पर वो सबने हेल्प किया था. ये इंडियन मेड है ऐसा बोल सकते हैं. So these two vaccines are there what are available in India. तो अभी तो हमारे लिए ऐसा है कि नाउ फॉर पहले हम 21 डेज के बाद जो हमने लिया वैक्सीन वो 21 डेज के इंटरवल में लिया. जब स्टडीज चल रहे हैं अभी भी और स्टडीज चलेंगे. तो उन्होंने ऐसा पाया है कि as the prolonged there is a prolonged interval between 2 doses of vaccine, say like 3 months now what it is. So उसका जो वायरस उसका जो हम क्या बोल सकते हैं उसका जो एक्शन है वो और स्ट्रॉन्गर होगा और उसके वजह से हमें जो इम्यूनिटी मिलेगी वो और अच्छी होगी और एकदम. सो इसके लिए वो ड्यूरेशन थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया गया है 3 महीने तक. तो पहला वैक्सीन आएगा वो थोड़ा इफेक्ट करेगा, उससे हमें अराउंड 60 to 70% तक इम्यूनिटी मिलेगी. फिर हम दूसरा वैक्सीन जब वो थोड़ा अच्छा काम कर रहा है तो हम दूसरा वैक्सीन देंगे तो हमें और 90 to 95% तक इम्यूनिटी मिल जाएगी. और ये जो इम्यूनिटी हमें मिलेगी वो थोड़ा ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड भी रहेगी. तो इसके लिए थोड़ा सा जो भी ड्यूरेशन है वो उन्होंने विद स्टडीज उन्होंने बढ़ाया है और अभी और स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन. सो this can increase decrease for in further days. So abhi just these are all studies based, and what we are doing is evidence based medicine. It's a modern medicine. और ये करके ही हम अभी तक इतने सब पुराने डिसीजेस पे हमने जीत पाई है और इस पे भी हम धीरे-धीरे वही कर रहे हैं. We will win against that. Don't worry. We're pretty sure, sir. India as a country has been a fighting nation. We've always fought against the biggest of the calamities and things that has come across. We have no doubt about it. So, as I said, while I asked this question, sir, there are a lot of frontline workers or people who have already taken this vaccine, like jinka 2 doses ho gaya. Now, does that mean that they will also get an extra dose after this, or that's the 2 doses are more than enough of what they've taken? So right now on booster doses, the studies are going on. We don't have a perfect data that whether we should take a booster dose or not take a booster dose. और जैसे ये study सब चल रहा है तो हमें as antibodies testing on higher what electron microscopy level are being done on these people, कुछ ग्रुप पे कर रहे हैं तो उसमें पता चलेगा कि कब तक वो वैक्सीन की इम्यूनिटी जो है वो मिलेगी. बिकॉज अभी हमने दिया है, इसके पहले तो हमने दिया नहीं था, हमको पता नहीं है. तो अभी हमने दिया है तो अभी 6 महीने हो गए लोगों ने रिसीव किया, अभी है उनके पास. तो जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे हमको पता चलेगा कि कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, कब बूस्टर लेना है या फिर वापस 2 डोज लेने पड़ेंगे. जो कुछ भी होगा जैसे जैसे स्टडीज आगे जाएंगे वैसे ही हमें पता चलेगा. अभी एक ही चीज है, वी हैव वैक्सीन, वी हैव टू टेक इट, वी डोंट हैव अदर एनी ऑप्शन फॉर दिस. राइट. सो जैसे सर मेरे जैसी माँ बोलती है कि नमक स्वाद अनुसार. सो एज एंड व्हेन इट विल बी ट्राइड एंड टेस्टेड, like this is the requirement that a human would require. Yes. This means the amount of vaccination not tried and tested. These all studies will go on because जैसे वैक्सीन डेवलप होने में जो पुराने वैक्सीन है उनको डेवलप होने में सालों 10 साल 20 साल 30 साल ऐसा टाइम लगा है. ये वैक्सीन हम इतना छोटा टाइम ड्यूरेशन पे we have produced that, and in the special circumstances they are allowed to be given. So जैसे जैसे स्टडीज होंगे वैसे ही हमें पता चलेगा कि उसकी एफिकेसी कितना टाइम तक रहेगी, कितना टाइम तक वो प्रोटेक्शन देगा.
वही है. पर अभी it's found that the patients who had person who got vaccination are pretty much fighting better as compared to other people who have not taken vaccination. आज की घड़ी में हमने अगर दुनिया में देखा जाए तो less than 10% people are vaccinated. It's nothing. In India में तो बहुत ही कम. अभी 1, 2, 3 करोड़ मतलब इंडिया की population it's more than 100 crore. So it's just in 4-5% that we can say. So it's far more to go. True, sir. So, while moving on to the next question, sir, now it has been said that there have been some doubts about vaccine being given to a menstruating woman or a pregnant or a breastfeeding woman. What is your take on that, sir? आपको क्या लगता है कि जो गर्भवती माता है, जो माता है, उनके लिए ये थोड़ा there has been ये चर्चा का विषय रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, डॉक्टर? So right now, जैसे अभी स्टडीज हुए हैं तो यूके में इन लोगों ने जो वहां पे उनका जो मॉडर्ना वैक्सीन और जो फाइजर बायोटेक उनका जो वैक्सीन है वो उन लोगों ने अराउंड 100,000 प्रेग्नेंट लेडीज में भी दिया और उसका स्टडी वहां पे चल रहा है और उनको गोइंग ऑन. अभी इंडिया में जो डेड वैक्सीन बेस्ड वैक्सीन है लाइक कोविशील्ड दोनों हमारे जो है वो हमें ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज में देने की परवाह अभी इट्स अंडर स्टडी एंड इट मे बी सैंक्शनड इन सम टाइम दैट हम ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हैं. जैसे कि इन लोगों ने ये पाया है कि जो वैक्सीनेटेड पहले वुमेन थी या फिर थे जो और वो प्रेग्नेंट हो गए उनके बच्चों में उसके इम्यूनिटी उनको जो है नेचुरल इम्यूनिटी फ्रॉम द पेरेंट और फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क इज गेटिंग ट्रांसफर्ड टू द बेबी. सो ये भी सब अभी स्टडी में है बट ऐसे कुछ स्टडीज में पाया गया है. सो दिस विल बी गो ऑन एंड लैक्टेटिंग जो लेडीज है वो वैक्सीन ले सकते हैं. उनको कोई भी उसका धोखा नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. राइट. तो अभी इसी नोट पे हम जो वैक्सीन अभी इस दुनिया में हम बोलेंगे जो मैक्सिमम 8 वैक्सीन विच आर कॉमनली यूज्ड जो अवेलेबल है उस पे बारे में हम थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे और आई विल जस्ट बताऊंगा मैं उनके बारे में आप लोगों को क्या अवेलेबल है एंड वेयर आर वी राइट नाउ. मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस इंटरप्ट कर रहा हूं आपका जस्ट नो प्रॉब्लम. या सो अभी हम हमारे पास है वो उसमें लास्ट में आएंगे. फर्स्ट जो है जो दो एक फाइजर बायोटेक है और मॉडर्ना है. ये जो दो वैक्सीन है दे आर mRNA बेस्ड वैक्सीन. तो ये जो वैक्सीन है ये हमारे जो यूके में और यूएस में अवेलेबल है. इनका वो क्या करते हैं RNA बेस्ड वैक्सीन. तो वो क्या करते हैं mRNA जो होता है वो हमारे साइटोप्लाज्म जो सेल का बाहरी स्ट्रक्चर होता है पानी उसमें वो डाल देते हैं और उसके अगेंस्ट हमारे जो स्पाइक प्रोटीन्स जो वायरस की जब अंदर आते हैं तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करने में वो हमारे बॉडी को रेडी करता है. That is basic behind that. इनका भी 2 वैक्सीन है दोनों का 2 डोसेस है. They are to be taken. The duration is varying and it's coming up. So there are 2 vaccines which are 2 doses to be taken for them. उनका जो efficacy है दोनों का it's around 90%. So they are best for at this point of time they are best. They are trying it in breastfeeding as I told you in breastfeeding pregnant lady everywhere they are trying these vaccines. And they will come up and अभी इंडिया में वो available नहीं है. But they are nucleotide based mRNA vaccines and they are best at मतलब अच्छा काम कर रहे हैं वो. So second what we have अभी ये होने के बाद हमें जो हमारे पास जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन का अगला वैक्सीन है. So that is a vector based vaccine. वो इसमें भी ह्यूमन वेक्टर हमने यूज किया है. So ह्यूमन हमने राइनो वायरस को ह्यूमन का हमने एडिनो वायरस को लिया और उसमें हमने डाला है और हमने फिट किया हमारा जो व्हाट वी कैन से कोरोना की फाइट करने के जो एंटीबॉडीज हमने फिट किया हमने हमारे को दे दिए एंड वो उसने अच्छा काम किया है. सो दैट इज सेकंड वन. और उसका वो है एक सिंगल डोज में अवेलेबल है एंड दैट इज इन यूएस अवेलेबल. वो सिंगल डोज में अवेलेबल है और उसका 70 to 85% तक उसका एफिकेसी है ऐसा उनका कहना है. So third one, fourth one, which we have is Sputnik 5 or Sputnik V. That is again that is modified vaccine है. ये भी हमारे पास जो अवेलेबल है ये that is Russian based. वो भी 2 डोज में लेना है और उसका भी एफिकेसी 70 to 90% तक है. Right. So next we have is Neovax vaccine. ये सब vector based inactivated vaccines ही है ये भी. And
साइनोवैक, कोरोनावैक, ये सब जो है ये वैक्सीन अवेलेबल है और ये भी सब 2 डोज में लेना है। अभी हम आएंगे जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है उनके बारे में। जो 2 है दैट इज वन इज और जो हमारे पास बोलते हैं कि mRNA वैक्सीन जो है दे आर मोर बेटर, सो व्हाई कांट वी यूज इट इन इंडिया। तो उसका जो स्टोरिंग टेम्परेचर है दैट इज मॉडर्ना का है -20 डिग्री और जो फाइजर का है दैट इज -80 डिग्री। तो इतना -डिग्री में हमारे पास वो स्टोर करना और उसके जो चार्जेस है दैट इज टू हाई, सो इट इज रियली डिफिकल्ट एंड इट विल टेक टाइम टू कम एंड सॉल्व ऑल दिस इश्यूज। सेकंड जो हमारे पास अभी 2 अवेलेबल है, एक है एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन जो दैट इज जो इंडियन बेस्ड दैट इज कोविशील्ड वैक्सीन नोन एज इंडिया ऑक्सफोर्ड को। इसका जो है जो सार्स 1 और जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो आया था तब इन लोगों के पास ऑक्सफोर्ड के पास उसका डाटा था जो उन लोगों ने तब स्टडी किया गया था। उसके बेस पे वी वर एबल टू जनरेट अ गुड वैक्सीन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो वो सब डाटा हमें मिल गया, तो उस पे स्टडी आगे चला, सो ये सब हो गया। तो इसमें इस सब वैक्सीन डेवलपमेंट में बिल गेट फाउंडेशन जो है वैक्सीन का, उन्होंने बहुत हेल्प किया है लोगों का। सो वी हैव टू रियली थैंक मिस्टर बिल गेट फॉर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। एंड जो ये भी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, इसमें चिंपैंजी का जो वायरस है रेडो वायरस वो यूज किया गया है, रेडो वायरस है, उस पे हमने माउंट किया है अपना एंटीबॉडीज को, देन वी हैव इंजेक्टेड इनसाइड। ये जो है ये या फिर दूसरा जो अपना कोविशील्ड भी है, जो कोविशील्ड हो गया सॉरी, जो कोवैक्सीन भी है दैट इज अगेन दैट इज अ ह्यूमन इनएक्टिवेटेड सेल वैक्सीन। डायरेक्टली हम डायरेक्टली उसमें कोरोना वायरस ही जो भरा हुआ है वो अंदर डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर से हमें इम्यूनिटी मिल रही है। इन दोनों की इफिकेसी अच्छी है, 70% टू 90% तक वेरी करती है, दोनों इक्वली इफेक्टिव है। ऐसा कोई नहीं कि एक बहुत अच्छा है एक बहुत कम है, दोनों भी उतने इफेक्टिव है। स्टडीज हुआ है कि उनके इफेक्टिविटी, उनके वो लेने के बाद कितने को इन्फेक्शन हुआ, कुछ इट्स अराउंड सेम। सो ऐसा कुछ नहीं कि कौन अच्छा है कौन कम है, बट दिस इज अ थिंग, दोनों को स्टोर करने के लिए हम रूटीन फ्रीज टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज आल्सो अ गुड थिंग फॉर अस दैट वी कैन use here. So I think this is about the whatever vaccines we have available in all over the world. ये दोनों भी हमें पता है सब दो डोज में ही लेने हैं। So एक ही जॉनसन जॉनसन का वैक्सीन जो अवेलेबल है that is to be taken in single dose. बाकी जो सब दुनिया में वैक्सीन अवेलेबल है वो 2 डोज में ही लेने हैं। That is a brief about vaccines what I think I have told. Any queries about that for Doctor, Jesse, I mean, when we move with our queries, I mean, I'll ask you if there is anything related to these vaccines. But I think more or less we've got a clarity about the efficacy, about the different types of vaccines that is available in the market, and I mean, it was all very explanatory, sir. Sir, one quick question here. If there's a person who's suffering from any chronic illness, would it be dangerous for that person, or do you think there can be some precautions that can be taken? I didn't got the question. So what I mean to say is, sir, say suppose if there is any person who is suffering from some chronic illness. Okay. Chronic illness is earlier. Yeah. Okay. Yeah. So if you are suffering from any chronic illness like say diabetes, hypertension, COPD, whatever, these are the group of infections who are, we have told that take vaccinations earlier. जल्दी लीजिए, 45 एज के ऊपर ही हमने उनको दे दिया बिकॉज दे आर हाई रिस्क ग्रुप्स और उनको वैक्सीन लेना है क्योंकि इनको अगर डिसीज होगा तो उनको डिसीज की सिवियरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। तो वैक्सीन की वजह से उनको कोई हार्म नहीं होने वाला है। पहले वो सो विथ वैक्सीनेशंस देयर इज नो हार्म टू व्हाटएवर क्रॉनिक डिसीज यू हैव। सिर्फ सल्फर ड्रग एलर्जी है तो ही हमें थोड़ा सा वैक्सीन लेने में प्रॉब्लम आ सकता है, अदरवाइज यू कैन टेक वैक्सीन। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग विथ क्रॉनिक डिसीज कैन टेक वैक्सीन। Fantastic, Doctor, now this is one question which is one of my favorite question. There's a lot of things that you can actually say on this. We see a lot of people, they've taken vaccines and then they move out without a mask and they say कि अरे US में चल रहा है, हम वैसे करेंगे. What is your take on that, Doctor? What would you like to say? As we told, just right now we are vaccinating just a small micro number of population in our country, and we have infectious immunity is there now, but that is the thing. So see, vaccine will decrease the risk of infection what you will take. So it doesn't, vaccine will never replace your mask, at least not for now.
when a large number of population, like say 70-80% population or more than that, when we will vaccinate that in India, और जब इन्फेक्शन भी होगा उसमें से 10-15% को, तो जब हमारा जो 90% का ऊपर का अगर पूल बन जाएगा पूरा जो इन्फेक्टेड है या फिर विद वैक्सीन और विद वायरल डिसीज, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अभी मास्क निकालो. दिस इज टू प्रीमेच्योर टू से दैट मास्क निकालो और घूमो. सो अभी बिल्कुल मास्क निकालना नहीं है. वैक्सीन ले लिया मतलब हम लोगों को कोई ऐसे वी आर नॉट हैविंग लाइक हमने अमृत नहीं पी लिया है कि हमको सब कुछ नहीं होगा. सो इट्स वैक्सीन इट विल. सो अभी ये नया है सब कुछ, तो हमें मास्क डालना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ही है, हमें हाथ धोने ही है, जो जो प्रिकॉशंस बेसिक है वो तो हमें करना ही है. हाँ, बट in due course of time, give some time, some in years or so, as हमारा वैक्सीनेशन जितना जल्दी आगे जाएगा, जितना लोग जल्दी वैक्सीनेट होंगे, so उसके ऊपर धीरे धीरे ये होने ही वाला है. थोड़ी ना हमें हमेशा के लिए मास्क डालना है. so धीरे धीरे जैसे ये डिसीज अपना कम होगा वैसे वैसे मास्क निकल ही जाएगा. राइट. सो डॉक्टर, ये जो वैक्सीन है उसका इफेक्टिवनेस कितने टाइम तक रहेगा? क्या ये हर साल हमको वैक्सीन लेना पड़ेगा कि अभी एक बार ले लिया तो लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी? व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन, डॉक्टर? as I have told you some time back, तो ये सब this is under study. so अभी जो हमने दिया है 6 से 7 महीने पहले लोगों ने वैक्सीन लेना चालू किया है और वो उनपे स्टडीज आर स्टिल गोइंग ऑन देम. और स्टडीज में ये दे आर लुकिंग आफ्टर एंटीबॉडीज इन देम. उनका लेवल क्या है, वो लेवल पे है क्या कि जो फाइट कर सकते हैं. तो अभी तो है. तो अभी 6 महीने तक तो है. तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, स्टडीज आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमें तब पता चलेगा कि व्हेन वी हैव टू टेक अ बूस्टर डोज, व्हेन इम्यूनिटी इज गेटिंग ओवर, व्हेन वी हैव टू टेक अ सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन. जैसे इन्फ्लुएंजा का है हमें पता है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हैव टू टेक एवरी ईयर. न्यूमोनिया का वैक्सीन है जो हमें पता है एवरी 5 साल में एक बार लेना पड़ेगा. ये जैसे कि या फिर पोलियो का हमें पता था जैसे कैसे लेना है, उसका कोर्स है हर एक वैक्सीन का. तो वैसे वैसे जैसे हम आगे स्टडीज करते जाएंगे वैसे हमें पता चलेगा कि कितना उसका इम्यूनिटी रहेगा और कितना हम आगे जाएंगे. राइट डॉक्टर. अभी जैसा है कि आपने थोड़ी देर पहले आपने अलग अलग वैक्सीन के बारे में बताया. So what is it? I mean, a lot of people say कि we should wait for Pfizer or Moderna to come to India, or do you think it is wise to take what is available now and protect ourselves? What do you think, doctor? Yes. So rather than waiting for Aishwarya Rai, marry with a good girl, what you have in front of you, what I will say here. So every vaccine is a good one. So they are giving you a good immunity. So always go on vaccine. Go on. जो है वो लीजिए. अभी that is the only thing what you can do. You don't have option. जो है ये है. और वो भी ट्राइड ऑन टेस्टेड अच्छा है. जो हमारे पास दोनों है वो अच्छे होल वैक्सीन है. वो अंदर जाते हैं और वो अच्छा खासा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देते हैं. So better, not better, it's okay, they will come in future, but whatever you have, take it right now. Then again second time when you have a chance, then you can decide, but abhi jo hai wo lijiye. That is the only important thing and only thing what we can do right now. Perfect. So a message for everyone, don't wait for Aishwarya Rai, let's go with Nirupama Roy. So it's just fun here, sir. So one quick question here, doctor. I mean, suppose I for a 2-dose vaccine, if I take my first dose and then I get tested positive, so should I wait for some time or just follow the same regime and get vaccinated? How does it work, doctor? Yeah. So if you say after, there are many patients which I had and I have seen who got first dose of vaccine and then they got positive in future. So whenever you have first dose, second dose, whatever, first of all, you don't have to repeat a first dose if you miss a second dose or you get infection in between, whatever. Right. And right now, as government has said, we have to wait for 3 months before taking a second dose of vaccine or whatever first dose of vaccine after getting infection of corona or COVID infection, COVID-19 infection. So after that, we have to at least wait for this whatever time period of 3 months, and then you have to go and take a vaccine. If you miss a second dose, as I was telling, आपने अगर मिस कर दिया सेकेंड डोज बीच में, तो आप ऐसे मत कीजिए कि मुझे वापस पहला लेना है. कुछ नहीं, आप अपना सेकेंड डोज लीजिए और आगे चलिए. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम. सो अगर आप कभी भी ये ध्यान रखिए, अगर इन्फेक्शन होता
होता है आपको तो 3 महीने तक आपको वैक्सीन लेना नहीं है, एंड देन अगेन यू गो एंड कंप्लीट योर सेकेंड डोज, दैट्स इट. Okay. So fine. And just a minute, with infection you will have antibodies. आपके पास antibodies तो generate हो गई with your disease. तो उसके बाद आप जब वैक्सीन लोगे तो और वो बूस्टअप भी होने वाले हैं, तो आपको उसका हेल्प भी होगा. So you become more protected, so that will be helpful only for you. So ऐसे मत कीजिए कि हाँ मुझे इन्फेक्शन हो गया, अभी मैं वैक्सीन नहीं लूंगा, चलो अभी मुझे कुछ जरूरत नहीं है. ऐसे नहीं, you have to go and take a vaccine. That's the only thing what you have right now. Sure. After this question, doctor, I mean, there's a counter question that arises, or so you said that even if you get infected after say 3 months, you can go and get your vaccination. Now the question says, अभी मैं खुद मतलब मुझे इन्फेक्शन हो चुका है, मेरे में एंटीबॉडीज है ऑलरेडी, तो is it not wise to wait so that others who've not got infected they get vaccinated at least, और अपना खुद का देख लो यार, बाकी बाहर में गए? Is that, I'm sorry I'm using this language, but so it's not like that. It's not like that. See, make yourself clear first. अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया, so you don't know what kind of infection it is, कितना severity है, कितना वायरल लोड आपने लिया है, और कितना हम लोगों ने कितना एंटीबॉडीज उसके बाद डेवलप होगा. हर एक का एंटीबॉडी डेवलप होने में डिफरेंट इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इम्यून सिस्टम. तो डिफरेंट एंटीबॉडीज विल जनरेटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन. सो अभी और स्टडीज के ऊपर से ये पता चलेगा किसी लोगों में 1 महीने तक रहेंगे, किन लोगों में 6 महीने तक रहेंगे, कितने, और बहुत से लोगों में 3 महीने तक रहेंगे. सो 3 महीने के बाद वैसे भी बहुत से लोगों में जो भी एंटीबॉडीज आप लोगों में डेवलप होंगे, वो वैसे भी मोस्ट ऑफ द पीपल विल लूज देम. So again you can have second infection or whatever. So it's different. The duration has been increased with all these studies and everything. And अभी ऐसे नहीं है कि हमें हो गया है तो हमें नहीं लेना है. हाँ, क्राइसिस है, अंडरस्टूड, बट ऐसे नहीं है कि आपको उसके वजह से पूरा मिल ही गया इम्यूनिटी, एंड इट इज कांस्टेंट. तो हर एक में वो वेरिएबल रहेगा. So you don't know, so you have to go and at least whatever 3 months they have said, you have to go and take at that time. क्योंकि 3 महीने बाद हमने जो देखा है, बहुत लोगों में एंटीबॉडीज लेवल अपने अपने नॉर्मल पे आ जाती है, निकल जाती है. Right. So, I mean, I have a lot of people asking a lot of questions on my chat. I mean, I'm going to request them, please be patient. We're going to be coming back to you and answering all your question and answers. But more importantly, these are the set of questions that we've received already from a few experts, and we thought these are the frequently asked questions that needs answer. So, doctor, my next question is, after the vaccination, does the daily routine change? I mean, do you have to make any changes, or life goes on, we continue with the same things? Continue the same thing. The only thing which came in consideration was to stop alcohol before vaccination 15 days and after vaccination for 15 days or 1 month, whatever. So this was that if you are a heavy drinker, ये आपका इम्यूनिटी बहुत कम करेगा. जैसे और बाकी आपको अगर कोई इम्यून जो सिंड्रोम से, लाइक जैसे आप कोई इम्यूनोथेरेपी पे हो, कैंसर के लिए आप कीमोथेरेपी भी हो, तो आपका इम्यूनिटी कम रहेगा. तब आपको ये सोचना है. तो दैट टाइम यू हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू टेक वैक्सीन, दैट आपको उससे वजह से कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए. तो जो वैक्सीन, अगर आप उसके बाद ये तो इम्यूनिटी कम रहेगा, तो वैक्सीन जो काम करेगा वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो अच्छे से इम्यूनिटी आप लोगों में डेवलप नहीं कर पाएगा. इसीलिए स्टडीज में जो कहा गया है कि अल्कोहल इज प्रोहिबिटेड बिफोर एंड आफ्टर द वैक्सीनेशन, तो उतना ही है. अदरवाइज आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी. आप अपना काम वैक्सीन लेने के बाद कर सकते हो. थोड़ा सा आपको जहाँ पे इंजेक्शन लिया वहाँ पे थोड़ा पेन होगा, दैट इज कॉमन. एक छोटा सा इंजेक्शन कहाँ पे भी लोगे तो पेन होगा. वैसे ये थोड़ा 4-5 दिन रहेगा, वो पेन अपना निकल जाएगा. पर वो उसको ज्यादा फॉर्मेट वगैरह नहीं करना है, अपना जो है अपना वो निकल जाएगा. उसके कोई गरम बिरम लगाने की वगैरह से कुछ जरूरत नहीं है. थोड़ा अपना इट विल टेक इट्स ओन टाइम. सिंपल पैरासिटामोल लीजिए, उसका इन्फ्लेमेशन है वो धीरे से आराम से निकल जाएगा. कुछ ज्यादा हायर पेन किलर्स की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है. वैसे ही सो नो मॉडिफिकेशंस टू बी डन, only alcohol is to be prohibited. That's it. Right. So eventually, जो भी ये जो वासनाएं हैं, I mean वासनाएं in the sense tobacco consumption, smoking, or alcoholism, these they kind of affect your overall immunity. And you suggest that during these tough times we should avoid things that will put your immunity down. Is that what you're saying? Obviously, in vaccine, even in smokers also, smokers, the endothelial cells जो हमारे होते हैं respiratory tract के, वो खराब हो जाते हैं.
तो उसके वजह से उनको दमे की तकलीफ होती है, तो दमे की तकलीफ होती है, बैठ जाते हैं, स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस, तो स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस बैठता है तो उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है, सेम वे आपको कोरोना इन्फेक्शन होने का चांस भी ज्यादा होता है. So that way, so if you control yourself by smoking alcohol, that will help you anytime. Okay. So, doctor, while we were talking about breathlessness, I have this question that has come up that says, does prone positioning really help with easing in the breathlessness? Yeah. So what is first of all we'll talk about why proning. मैं ऐसे ही सोऊंगा, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे सोता हूँ आराम से, ऐसे नहीं. So when proning करने से हमको या फिर lateral positioning से कैसे क्या फायदा होगा कोरोना पेशेंट्स में, या फिर not only corona, whatever patients who have lung diseases will help them. जब हम ऐसे सुपाइन पीठ पे सोते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है या फिर लीवर है, उनका जो भार होता है वो हमारे लंग पे आता है, तो हमारा लंग दब जाता है. ये सब आगे के ऑर्गन्स है. जब हम पेट पे सोते हैं तो वो जो ऑर्गन है अपना अपना आगे रहेगा और अपना लंग्स के लिए जगह मिलेगा कि उनका वो बड़ा हो छोटा हो, उनका जो ऑक्सीजनेशन है, उनका जो अंदर हवा आने की जो जगह मिलेगी उनको, तो वो अच्छे से हवा ले पाएंगे, अच्छे से ऑक्सीजनेशन उसका हो पाएगा, वेंटिलेशन हो पाएगा. तो जैसे और जितना अच्छा वेंटिलेशन होगा, जितना अच्छा ऑक्सीजनेशन होगा, और तो उतना आप लोगों को पेशेंट विल बी what we can say better or cure earlier. So पीठ पे सोने से अपना ऑक्सीजन लेवल जो है पेट पे सोने से वो बढ़ेगा, इस वजह से क्योंकि जो अपना जो लंग है उसको फूलने के लिए अच्छी जगह मिलेगी, तो इसीलिए सिर्फ पेट पे सोना है, तो वो बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को कोरोना पेशेंट्स. राइट. और डॉक्टर ये भी देखा गया है, आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ केसेस, और आपके पास जो कंसल्ट करते हैं, सिंस यू आर अ स्पेशलिस्ट इन respiratory, so what happens is, after the recovery as well, you see the oxygen levels dropping down. Is it normal for the oxygen levels to drop after recovery? So recovery, see, corona or covid affects lung basically. जो कोविड वायरस है उससे ज्यादा जो वो अपने अंदर आएगा, जो अपना इम्यून सिस्टम का वो एक्टिवेट करेगा, जो उसका रिस्पॉन्स आएगा हमारे लंग्स पे, जो सब दैट इज मोर डेंजरस देन अ वायरस. ऐसा अभी हम बोलना पड़ेगा कि वो आएगा, वो इम्यून रिस्पॉन्स को एकदम मतलब बढ़ा देगा, और एकदम हमारा जो ग्राउंड जो लंग में जो सब जो चेंजेस होंगे, तो उसके वजह से कभी कभी हमारे लंग फाइब्रोटिक हो जाते हैं, तो मतलब लंग थोड़े से खराब हो जाते हैं, तो उसके वजह से कभी कभी अपना ऑक्सीजन कम हो सकता है. दूसरी चीज है कि कोविड हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म अ थ्रोम्बस, दैट इज वो उसको एक टेंडेंसी है कि वो अपने जो रक्तवाहिनी होती है जो पैर की हो, दोनों पैर की बड़ी बड़ी वेसल्स है, या फिर हमारे लंग्स के जो वेसल्स है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, जो जिससे शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त आता है लंग से और जाता है, उनमें वो थ्रोम्बस फॉर्म करता है. तो थ्रोम्बस इज रक्त की गांठ, वो कॉज करता है, उसके वजह से भी कभी कभी ऑक्सीजन कम हो सकता है. तो दीज आर ऑल पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस. तो हमें जब इन्फेक्शन होता है कोविड का, तो हमें कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो जैसे कि, और एक्सरे, सीटी स्कैन, हमारा ऑक्सीजन लेवल, फीवर, इस पे हमें अगर हम पहले से ध्यान देते गए तो हमें ये बाद में होने की संभावना कम रहेगी. और प्रॉपर ट्रीटमेंट हमने अगर टाइम पे ली तो हमारा लंग उतना फाइब्रोटिक स्टेज में जाएगा ही नहीं. अगर गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर उसकी ट्रीटमेंट लेनी है, जैसे कि ये एम्बोलिज्म्स ना हो या फिर हमारे रक्त की गांठ ना हो, उसके लिए हमें प्रॉपर जो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं वो करने हैं. वो अगर ज्यादा है तो ब्लड थिनर्स जो है वो हमें टाइम पे चालू करने हैं, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत अच्छे तरह से हम प्रिवेंट कर सकेंगे. सेकेंडली इट्स ऑल्सो हार्ट अफेक्ट समटाइम हार्ट, तो मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये भी चीज हो सकती है. तो हार्ट के बाहरी कवर के इन्फेक्शन ये भी हो सकता है. तो इन्फ्लेमेशन, सॉरी, तो अगर ये होते हैं तो उसके लिए भी हमें टाइम पे डॉक्टर से मिलना है, उस हिसाब से उसके इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, तो ही हम उसको प्रॉपरली प्रिवेंट कर सकेंगे. तो पोस्ट कोविड सिक्वेलीज या फिर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आर देयर टू ऑकर, बट यू हैव टू, वो अगर हमें हुआ है कोविड तो हमें कुछ चीजों की मॉनिटरिंग करनी है. ऐसे नहीं कि सब में होगा, अभी मतलब इट्स वेरी लिटिल परसेंटेज ऑफ पीपल विल गेट ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस, बट पीपल विल गेट देम, बट यू हैव टू बी cautious for that you should not get that. Right. So eventually, so the bottom line is, you stay away from unwanted stuffs like tobacco, smoking, alcohol. You eat good food. You maintain your fitness,
and the extent to which COVID would impact you would be much lesser. If I'm Yeah, not, if second I'm, thing, as we exercise we were talking. So respiratory exercises are very good things. So if patient is having a lung involvement, the respiratory exercises like incentive spirometry, deep breathing exercises, balloon blowing exercises, all this will help them to expand their lung again and put the oxygen supply to the deepest part of the lung, that is called alveoli, which has been collapsed. वो गिर गया है, ऐसा छोटा सुकड़ गया है. तो उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए ये जो लंबे लंबे सांस लेने की जो एक्सरसाइजेस है या फिर जो प्रोन पोजिशनिंग है, ये सब हम लोगों को हेल्प करेगा. तो तो और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट फूड, ये हमारी ताकत बढ़ा के रखेगा. तो हम उसके अगेंस्ट रोग प्रतिकार शक्ति हमारी अच्छी रहेगी, तो हम उसके अगेंस्ट फाइट अच्छे से कर पाएंगे, तो ही हमारे पास ताकत रहेगी. right, doctor. Doctor, now I mean, there's रोज न्यूज में कुछ ना कुछ नया चीज आता ही रहता है. Now this is something which is very motivating as well as inspirational. Like so, DRDO, which basically is our war front, which develops a lot of things for the country. Yes. So they are into some some kind of a medication for us. So what is the effectiveness? Is there anything that you know about their usage, dosage, sustainability? Any idea about it? Yeah. So DRDO, this so it is a, so as there are newer drugs coming in, it is ये जो है वो अपना जो ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, ग्लूकोज से बना हुआ एक चीज है, वो अंडर स्टडी है अभी, वो अभी आएगा धीरे धीरे. उस पे कुछ लोगों में अभी दिया गया है और उसका इफेक्टिवनेस पाया गया है लोगों में. So that's the thing. So it is working, it's coming. So newer drugs are coming. Just we have to wait. तो जैसे पहले HCQ पे अच्छा इफेक्टिवनेस था, तो हमें आगे पता चला कि उतना काम नहीं कर रहा है. अभी ऐसे बहुत से ड्रग है जो काम करते हैं, ऐसे पहले है जो उसके स्टडीज होते हैं, पर बाद में उसको पता चलता है कि उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है. वैसे ही ये नया ड्रग है, विल वेट ऑन दैट, लेट स्टडीज गो अहेड, और हम उस पे कमेंट जैसे जैसे वो लोगों में दिया जाएगा वैसे हमें उसका इफेक्टिवनेस पता चलेगा. Right, doctor. Before we move on to one of the most important topic that we are getting questions on. Now we're talking about the second wave. Second wave hit us really bad. The entire country was down, but we've kind of rising up, to the situation. The cases in Maharashtra are coming down. Cases in Delhi are coming down. So, do you think it's a matter of a few days that will again be hit by the third wave, or it is just that if we take precautions, if a lot of people get vaccinated, we would still be safer by the third, by Yes. the time we get hit by the third wave. That's what our government is doing. That increasing the number of vaccinating people. They are coming down with age. वही हेल्प करेगा हम लोगों को कि मैक्सिमम वैक्सीनेट करे लोगों को, मैक्सिमम हमें फिट रहना है. जैसे हमें what we were doing after the first wave, we are not putting our mask on our nose. It was for our face. Most of the people are not using it. So हमें हमारी खुद की भी केयर लेनी है. जैसे मास्क प्रॉपरली यूज कीजिए. तो हमने इतना अच्छा कंट्रोल किया था. अगर हम रहते उसमें अच्छे, हमने अगर खुद की और अच्छी केयर ली होती तो हमें सेकेंड वेव इतनी बैडली नहीं हिट करती. जो हम पहली थिंग है कि हमें हमारी जिम्मेदारियां जो है वो हमें समझनी है कि हमें मास्क अच्छे से लेना है, यूज करना है, हमें हैंड वॉश करना है, हमें जो क्राउडिंग नहीं करना है. सो दैट्स अ बेसिक थिंग. सो हम ये करके लोग आगे की जो सो टू एंजॉय फर्दर यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ नाउ. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो अभी हमें वो करना है. सेकेंडली वैक्सीनेशंस विल रियली हेल्प अस. सो अभी जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीनेशन बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने बात की पोलियो के बारे में या फिर मीजल्स के बारे में, जैसे वैक्सीनेशन का नंबर बढ़ता गया वैसे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई. जैसे तो दैट इन दैट वे आल्सो इट विल हेल्प. सो दिस इज द थिंग दैट विल गो ऑन. सो हमें केयर लेनी है खुद की और हमें वैक्सीन लेना है. तो दोनों इट्स टू एंगल. हम ऐसे सीधा जाएंगे तो पूरा एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. Right, doctor. And third wave, fourth wave, fifth wave will come on. So vaccine mutate हो, जो वायरस है वो उसका टेंडेंसी है म्यूटेट होने का, वो नए फॉर्म में आएगा, हमें अफेक्ट करेगा. पर जैसे जैसे अभी इस टाइम का बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन था या फिर उसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा था लोगों में और सब में इन्फेक्ट किया. उन्होंने लंग को भी बहुत स्टिफ बनाया था इस बार. सो इट वाज रियली टफ. इट्स गोइंग ऑन स्टिल. इट्स नॉट ओवर येट. So it's going on. Numbers are coming down. So we have to maintain this number down. So we have to take utmost care that we can. True. Very rightly said, doctor. I mean, it is just there is a lot of fear among people. There are a lot of misunderstanding and wrong information that has been shared on social media, on our news channels, and
a message has to go through to people to talk to an educated medical practitioner like yourself, who would be the right person to guide them and tell them what needs to be done, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, because you know it all, you've seen it all, right? Yes. Yeah. So. Yeah. Please. So, the la- so what I was not able to understand the question. So can you just? This was not a question, Doctor. What I was trying to imply is, there is this thing that used to come up in our school books that said prevention is better than cure. Yeah, So obviously, prevention is always better than cure. To get infection or to get a disease and lose our loved one is not a thing which we want in future also. So always we have to. We should not be feared of things, obviously, but we should be careful. That what we can do is. So obviously, हम चलते हैं तो हम ध्यान रखते हैं ना कि हम गिर ना जाए. थोड़ी ना हम चलना बंद कर देते हैं कि गिरने की डर से. It's same. So we have to walk. We have to walk on the path. So but be careful while walking. आगे कोई पत्थर तो नहीं है ना, पत्थर तो बाजू से चाहिए ना. That's what we have to do. Very well said, Doctor. And then this is what we were looking at. Now, my last question in the set of questionnaires that we prepared is, there is a news going on about the black fungus, the white fungus. There is something called as the yellow fungus. These are the things that we see in the news. So, would you like to share some light on this situation? So जो ये फंगल इन्फेक्शंस, फंगल ही नहीं, कोविड के बाद जब कोविड के वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत चार्जअप हो जाती है, तो उसके वजह से सभी इन्फेक्शंस होते हैं, सब ये जो प्रॉब्लम जो होता है कोविड का डिसीज जो हो रहा है, सिवियरिटी वो बढ़ जाता है. तो उस इम्यूनिटी को हमारी जो उसको सप्रेस करने के लिए हम स्टीरॉइड्स देते हैं या फिर बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं कि जिसके वजह से इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिए जाते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाए. तो अगर उसका ओवरडोज हो गया या फिर हमारा शुगर लेवल्स बढ़ गया उसके वजह से और वो अच्छे से कंट्रोल नहीं किया गया, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अदर इन्फेक्शंस, और दीज आर ऑल कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस. ये सिर्फ एक फंगस ही नहीं है, हमारे पास जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है या फिर अलग नोकार्डियासिस नाम का अलग डिसीज होता है, वो हो सकता है. वी हैव सीन मेनी नोकार्डियास आफ्टर दिस. सो वी हैव सीन नॉन टिपिकल माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस. ये भी एक प्रकार की अलग ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, जो टीबी हमारा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से अलग होता है. ये सब अपॉर्चुनिस्टिक, मतलब उनको अगर जब घर मिल गया, ये उनका घर नहीं होता है, उनको मिल के नहीं जगह वो घुस जाते हैं, वैसे होते हैं वो. तो वैसे ही ये फंगस का भी है. तो ब्लैक फंगस, फॉर फंगस वी विल से रादर देन कॉलिंग इट इन कलर, they have their separate names, so let it go by a separate name what they have, like black mucormycosis. Mucor is a fungus. ये जो फंगस है ये है हमारे यहाँ पे, वो कुछ यहाँ नए नहीं आए हैं, हमारे वो कॉमन सेल फ्लोरा, मतलब हमारे में होते भी है वो. जैसे म्यूकर ये सब है, हमारे नाक से अंदर जाता है, हमारे अंदर जाने के बाद कुछ नहीं करता है क्योंकि हमारे पास उसके आगे साइड करने की ताकत होती है, तो अपने हमारे जीआई ट्रैक्ट से, मतलब फूड पाइप से वो नीचे निकल जाता है. सो अगर हमारी जब रोग प्रतिकार शक्ति कम है और हमारा अगर शुगर ज्यादा है, तो उसको अच्छा फ्लोरा मिलता है कि अच्छा वो वहाँ पे उनको जगह मिलता है, तो आए वहाँ पे इन्फेक्ट करे, तो देन वो गो इन और वो इन्फेक्ट करते हैं. वो कहाँ इन्फेक्ट करते हैं? लंग्स में करते हैं, जीआई ट्रैक्ट में करते हैं, अपने साइनसेस में, नोज आईज में करते हैं. नोज आईज का ज्यादा डेंजरस क्यों है? क्योंकि वो ब्रेन को इफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रेन और नोज और आईज और ब्रेन के बीच में जो लेयर होता है वो जस्ट वेरी थिन होता है, तो उसको फोड़ के ऊपर जाता है. सो इट इज मोर डेंजरस. तो अगर जो इसके लिए जो प्रॉपर एंटीवायरल ड्रग्स है वो देना है, जहां तक वो ड्रग्स नहीं जा सकते हैं तो वहां पे वो निकाल देना है सर्जरी करके. सेम वे सेकेंड इज एस्परजिलस, वो उसके लिए भी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है. कैंडिडा है, सो व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू, ग्रीन सब नाम आएंगे आगे. सो हमें उनको ऐसे कलर से नहीं, जो उनका है नाम, विल इफ इट इज दैट, विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिवेंट दैट, कि प्रॉपर डोसेज में सब यूज करेंगे तो प्रिवेंटेड रहेगा. पर अगर होता भी है कुछ है तो उनको प्रॉपरली डायग्नोस कीजिए, प्रॉपरली उसका माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करके अगर होगा तो इट विल क्योर आल्सो. सो अर्ली डायग्नोसिस इन दिस फंगल इन्फेक्शंस इज आल्सो मोर इंपॉर्टेंट. तो अगर कुछ भी आपको तकलीफ है, लाइक फॉर सर दर्द है, साइनस मतलब सर्दी हो रही है, या फिर कोई भी आपको कोविड होने के बाद नई इन्फेक्शंस लग रहे हैं और आपने स्टेरॉइड्स लिए, आपकी शुगर बहुत ज्यादा है, आप डायबिटीज के पेशेंट हो, तो आप जरूर जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए. जितने जल्दी जाओगे उतना उसका क्योर जल्दी हो पाएगा. राइट डॉक्टर. नाउ डॉक्टर, काफी सारे सवाल हमें अभी इस जो चैट में
जो हमारे मैसेंजर चैट में वगैरह पूछा जा रहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। एंड मैं क्षमा मांगना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि मैं इंग्लिश में काफी सारे क्वेश्चंस पूछ गया, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन इंग्लिश में थे। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में पूछने की, बट थैंकफुल टू डॉक्टर। डॉक्टर has been very kind enough to speak in the language that सभी कंफर्टेबल है। सभी डॉक्टर के सारे आंसर्स और जवाब हिंदी में थे। डॉक्टर, ये थोड़े रिपीटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, मैं क्विकली रन थ्रू करूंगा इनके थ्रू। डॉक्टर, बाय एनी चांस हर्ड इम्यूनिटी इंडिया में आ सकता है? क्योंकि आपने बोला कि हर्ड इम्यूनिटी एक्सप्लेन तो की है, तो यस इट विल कम बट इट विल टेक टाइम। थोड़ा सब्र कीजिए, जैसे नंबर ऑफ वैक्सीनेशंस बढ़ते जाएंगे, जैसे मैंने बोला जान होने दो ना। जैसे पहले भी हम लोगों ने कितना मतलब पोलियो मैंने बोला, मीजल्स बोला, सो जैसे उनका नंबर बढ़ता गया वैक्सीनेशंस का, वैसे वो आ जाएगी। पर वी डोंट नो व्हेन इट विल कम। 70%, 80%, 90%, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो पता चलेगा हमें कि इट विल कम। स्टडीज आर गोइंग ऑन, जैसे तो हमें पता चलेगा। इट विल श्योरली डेवलप, बट वी हैव टू वेट। Right, doctor. This is a question which is repeated multiple number of times even after we explaining. Maybe ये questions, कुछ questions ऐसे थे जो पहले पूछ लिए गए और हमने उसको explain कर दिया था, लेकिन the question was, is Pfizer good or Covishield? I think we've already तो spoken दोनों about it. भी अच्छे हैं, दोनों भी गुड है। अभी हमारे पास ना गुड बैड करने के लिए वी आर नॉट, मतलब हमें इतनी लिगसी नहीं है हमारे पास। जो है वो लीजिए, वो मोर इम्पोर्टेंट है। सो दोनों भी अच्छा प्रोटेक्शन देंगे। दोनों जो मिलता है वो लेना अभी ज्यादा जरूरी है, और वो ज्यादा दैट विल बी वाइजर। तो वो करना ज्यादा अच्छा रहेगा, व्हाट आई फील इज। डॉक्टर, अभी ये जो सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में बोला जा रहा है, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन है, बाकी सारे तो डबल डोज वाले हैं, तो यही पूछना चाहूंगा कि जो सिंगल डोज वाले वैक्सीन है, क्या वो ज्यादा इफेक्टिव है, या इट जस्ट बिकॉज ऐसा कैसा, मतलब वो जो कंसेप्ट है सिंगल डोज और ऐसा तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका हर एक का मैंने इफेक्टिविटी भी आप लोगों को बताया था कि कैसा उसका एफिकेसी है। जस्ट गो थ्रू दैट जस्ट अ मिनट, टेल यू अगेन। सो सिंगल वैक्सीन, डबल वैक्सीन, जो अगर देखा जाए तो जो डबल वैक्सीन है, जो उनकी जो एफिकेसी है, दे आर मोर एज कंपेयर टू सिंगल वैक्सीन। सिंगल वैक्सीन का 70 to 85% तक बोला गया है। जो हमारा एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन है, उसका पहले हाफ डोज में यूके में एक ऐसा भी ट्रायल होके कि हाफ डोज दिया फिर फुल डोज दिया, उसमें तो उनको 90% एफिकेसी मिला। जो दोनों डोज दिए उसमें उनको पहले ही ट्रायल में 62 to 65% तक एफिकेसी मिला। तो सो इट्स ऑल अवेलेबल, जैसे उन लोगों ने स्टडी किए उस पे है। पर अभी मैक्सिमम जो वैक्सीन अवेलेबल है, दे आर इन 2 डोसेस, और वो ज्यादा ले रहे हैं लोग, और that is better, and that is being tried and tested more, so that is better to go into dose vaccine. Absolutely. Doctor, I have a lot of people in the comment section, and you'll find such kind of people who, have a set of notion about any new thing that happens. And this is called as I call it as a resistance to something that is happening. So there is this virologist who is, commented saying after 1 or 2 years of vaccination, you'll die, and I'm sure you'll be aware of that. This is a very wrong question to ask in a public forum, but since it has been asked multiple number of times, so just wanted to check with you, is there any mortality that has been found, especially because of... So that's what I told you earlier also. Though whatever mortality some of them they had because post vaccination, and which we thought that was because of vaccination, that was after studies we found that was not because of vaccination, that was because of the other issues that patient had earlier. Right. So वैक्सीन की वजह से कोई भी अभी ऐसे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। ओके। और ये मॉडर्ना जो है, जो यूएस में मेजॉरिटी पाया जा रहा है, they also have their set of complications, but a lot of people want to they're actually traveling down to the west to basically get vaccinated with a Moderna. So is it wise for them to wait? Because like we already told that any vaccine that is available, जो vaccine अभी available है, that is the best that can help you as of now. Yes, that's what. So जो है वो लीजिए, उसके लिए आपको वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। What I feel is, हाँ वो अपना हर एक का परसेप्शन है, बट what I feel is कि जो अपने पास अवेलेबल है वो भी उतना ही इफेक्टिव है। हाँ, हर एक का इफेक्ट करने का मॉडर्ना या फिर फाइजर जो है, दे आर न्यूअर वैक्सीन, उनका टेक्नोलॉजी भी नया है, पर जो है अपने पास वो भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। तो ऑब्वियसली जो है वो लीजिए।
सही सही कहा डॉक्टर। डॉक्टर ऐसे कुछ केसेस पाए गए थे जहाँ पे आफ्टर कोविशील्ड वैक्सीनेशन कराने के बाद ब्लड क्लॉट्स के सिचुएशन देखे गए थे। इज इट समथिंग स्पेसिफिक और इट इज बेसिकली वन ऑफ केस दैट यू सी नो? इट इज नॉट, थोड़ा सा रेयर है वो होना। जैसे प्रेग्नेंट लेडीज में हो सकता है, ऐसा कहना है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रेग्नेंट लेडीज में देते, अभी तक नहीं हम लोगों ने चालू किया है। सो दिस इज हाउ, सो इट्स ऑल गोइंग ऑन स्टडीज एंड देन these things we will get on। सो हो रहे हैं तो उसका क्या करें। तो अभी जो पॉपुलेशन में पहले बोलते थे एस्पिरिन आप लेते हो तो मत लेना, एस्पिरिन की वजह से प्रॉब्लम, अभी कुछ नहीं है, आप लीजिए। जैसे आपको ब्लड डिसीजेस है कोई क्रॉनिक, तो आप जैसे हार्ट डिसीज है तो मत लीजिए, ऐसे कुछ नहीं है, आप लीजिए, कुछ नहीं होगा अभी। सो इन नॉर्मल पॉपुलेशन इट विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। डॉक्टर, आपके पास भी बहुत सारे मरीज आते होंगे, आपके खुद रिश्तेदार, दोस्त, मित्र आपको पूछते होंगे कि एक डर कम है लगता है। तो हो एक सकता है। सॉरी सर, सॉरी। या सो ऐसा नहीं है कुछ भी, आप लीजिए वैक्सीन बिंदास। हाँ जी। हाई रिस्क पॉपुलेशन जो एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है, जो प्रेग्नेंट लेडीज ये है, जिनका पहले ही जिनमें ये थ्रोम्बोटिक फिनोमिनन ज्यादा होते हैं, उनमें होने के चांसेस है, इसीलिए तो हम रुके हैं उनमें देने के लिए। लाइक अदरवाइज बाकी सब लोग ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ भी नहीं होगा। राइट। अभी इन द सेकंड जो अभी म्यूटेशंस देखे गए, लाइक फर्स्ट वेव वी हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वायरस, नाउ इट गॉट म्यूटेटेड इन द सेकंड, एंड जैसे आपने बोला कि आगे आगे म्यूटेशंस बढ़ेंगे बिकॉज it's basically in a microbial which adapts to the existing situation, और वो adapt होके जो वो क्या है बेटर होते जाता है कि अभी इट इज ऑल्सो समथिंग विच इज लिविंग बीइंग, और वो उसको भी सर्वाइव करना है। तो डॉक्टर, तो वैक्सीन हम जो ले रहे हैं, इट इज बेसिकली फॉर द करंट सिनेरियो, आगे के लिए द गवर्नमेंट विल वर्क ऑन समथिंग बेटर, इजंट इट? Yes, so as right now what we have is अभी के लिए है, पर उसका म्यूटेशन होने के लिए भी टाइम लगेगा ना, तो जब तक वो म्यूटेट होता जाएगा तो हम ये वैक्सीनेशन ले लेंगे, तो ऑब्वियसली इसका फायदा होगा। और अगर वो थोड़ा म्यूटेट होता है तो ऐसे देखा गया है कि जैसे जैसे वो म्यूटेट होगा तो हर बार वो स्ट्रांग होगा ऐसे ही नहीं है, कभी कभी कुछ म्यूटेशन वीकर भी होंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि हर बार वो स्ट्रांग ही होता जाएगा, जितना म्यूटेट होगा वो कभी कभी वीक भी होता जाएगा। तो इट डिपेंड्स। तो अभी जो है हम लेंगे तो हमें क्या अचीव करना है। हाँ, कोई भी वैक्सीन लेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको कभी इन्फेक्शन होगा ही नहीं, पर इट विल बी इन अ माइल्डर फॉर्म। हाँ, जैसे हमें नॉर्मल सर्दी हो गई, वो भी कोरोना वायरस ही होती थी ना पहले। कोरोना वायरस है, रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उससे हमें सर्दी होती थी, पर वो इतनी डेंजरस नहीं होती थी। हमें उस लेवल पे आके रखना है वापस, सो वैक्सीनेशन देना जरूरी है। परफेक्ट। डॉक्टर, अभी आई मीन ये तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से भी है, लॉट ऑफ पीपल हैव प्रेफर्ड टू घर पे जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहे हैं आफ्टर कंसल्टिंग विद अ फ्यू डॉक्टर्स, दे उनका मानना है कि यार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा और उसके बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, उससे अच्छा मैं अपने किसी मित्र से कंसल्ट करके घर पे हॉस्पिटल मतलब घर पे अपना ध्यान रखो, होम क्वारंटाइन होके, आइसोलेट होके, आई टेक मेडिकेशन एंड रिकवर। डू यू थिंक इट इज हेल्पिंग और इट इज डेंजरस? सो इट्स सी, घर पे ट्रीटमेंट लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो घर पे अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपको ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, आपको कोई फीवर आपका कंट्रोल में है, आपको कोई बाकी के दिक्कत नहीं है, आपका जो मार्कर्स है इन्फ्लेमेशन के वो इतने ज्यादा बढ़े हुए नहीं है, so you can obviously take treatment at home with the proper consultations of proper doctors जो इसमें तज्ञ है, उनसे आप कंसल्ट करके प्रॉपरली आप घर पे ट्रीट करके आराम से ठीक हो सकते हो। बहुत से पेशेंट है जो घर पे ट्रीटमेंट करते हैं और ठीक होते हैं, पर यू हैव टू एक जो डॉक्टर उनको ट्रीट करे और हम ट्रीट हो रहे हैं, तो हमें एक अपना बॉर्डर लाइन पता होना चाहिए कि कब हमें हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। जब हम घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो रूटीनली करना जरूरी है, और हमारा ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, फीवर मॉनिटरिंग, ये हमें करना है। अगर हमारा ऑक्सीजन 92% के नीचे जा रहा है तो इट्स अलार्मिंग साइन फॉर अस, हमको जाना है, एडमिट होना है। हमारा फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जाना है, हमें एडमिट होना है। सो ये जो हमारा डायबिटीज है घर पे हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत बढ़ गए हैं, हमें स्टीरॉइड इंजेक्टेबल लेने की जरूरत है, तो हमें एडमिट होना है। सो यू हैव टू फाइंड द बाउंड्रीज वेयर यू वांट टू गेट एडमिटेड। ऐसे नहीं है ना, जो कोविड इन्फेक्ट होता है वैसे हर एक पेशेंट को उतना सीवियर डिसीज ही होगा, तो you can manage patient at home
प्रिटी नाइसली, क्योंकि उसके घर की कंडीशंस में वो अच्छा जो हॉस्पिटल में रहने से उसका फियर कम रहेगा, वो साइकोलॉजिकली भी फिट रहेगा घर पे। क्वारंटाइन 14-14 दिन बंद होके बैठना इज नॉट अ सिंपल थिंग। तो घर पे रहेगा तो कंफर्टेबल भी रहेगा, अपने घर वालों के मतलब अपने रूम में अपने कंफर्ट जोन में रहेगा। पर वो करते टाइम हमें अपना खुद का जो बाउंड्रीज है वो सेट करना बहुत जरूरी है। वो बाउंड्रीज अगर हम पार करते हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज होना है, ये हमें समझ लेना है। वेरी वेल सेड डॉक्टर। डॉक्टर, किसी ने अभी जिक्र किया है अबाउट एंटीबॉडी कॉकटेल मेडिसिन, यू नो, so I mean, is it the virus, is it the vaccine itself, the antibody cocktail medicine, No, I'm or not aware of that. okay, and So, also so we have treating so many patients in this corona, but we have not used anything like that. Many people are using many things, but it is nowhere. I have not heard also in any study it is going on. So if it is a kind of thing, it will come with studies, it will come with evidence. Then we will talk. Then we can think about that. makes sense. Can this virus become an MDR? It said it's a मतलब multi drug resistant जो कहा जाता है. So for at this point of time, we don't have a prop. It's not a targeted drug which we have available for a coronavirus, right? So Right. what we are giving is all just by your experience and what you have. So अभी जो हम कर रहे हैं, जो हम हमारी इम्यूनिटी कम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कम हो जाए. So Right. that's what we are doing. We are not directly treating. हमारे जो वैसे रेमडेसिविर या फिर फेविक्विक ये जो चीजें हैं, फेविपिराविर, they are helping. Remdesivir is really helping, but they earlier also they are not tried and tested in for COVID. They are tested for some other thing जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. And they are getting effective surely. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे हमारे को टारगेट हम लोगों को टारगेटेड ड्रग्स भी मिल जाएंगे, बट इट नीड्स अ लॉन्ग स्टडी टू गो. और वायरस का टारगेटेड ड्रग मिलना भी बहुत मतलब बड़ी बात होती है, क्योंकि उसको म्यूटेशन जैसे हमने बात किया, अगर वो बहुत ज्यादा म्यूटेट हो जाता है तो उसका बहुत प्रॉब्लम, मतलब विल नॉट गेट दैट प्रॉपर ड्रग. Right. डॉक्टर, ये अभी आई मीन दिस इज अ क्वेश्चन, आई एम श्योर वी ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, इसके बारे में बात किया है. आईसीएमआर के जो गाइडलाइंस है वो रिपीटेडली चेंज हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर इट्स बिकॉज नए नए चीजें स्टडीज में पता चलती है. इस पे कुछ थोड़ी रोशनी डालेंगे डॉक्टर? About new studies and what kind of so ICMR comes up with a new guidelines. Yes. Yeah. So yes, there are ICMR is a they people are the people in world, millions of people are studying on this virus because it is a hot topic now and it needs to be studied. So उसके ट्रीटमेंट, उसका प्रिवेंशन, सब के बारे में, जैसे कि हमने अभी बात की, पहले हम 21 दिन बाद फर्स्ट सेकंड डोज ले रहे थे, अभी हमने वो 2 हफ्ते किया, फिर बड़ा कि 2 महीने 3 महीने हो गया अभी. सो ऑल दीज आर स्टडीज व्हिच आर गोइंग ऑन, उस पे एविडेंस आ रहा है, वो सब पे आईसीएमआर गौर कर रहा है, वो पूरा देख रहा है, दे आर लुकिंग आफ्टर दैट एंड व्हाटएवर आर वैलिड थिंग्स दे आर टेकिंग इन फ्रंट. So there are guidelines that they are making for all these things to make things in a proper channelized form. So that's Right. a body which, that's the thing which is required right now. राइट. सो सभी से यही कहना चाहूंगा कि जो आईसीएमआर है, वैसे डब्ल्यूएचओ है, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये अभी कोविड-19 ये जो वायरस है, ये काफी देशों में काफी आतंक मचा चुका है. तो इन लोग स्टडी करते रहते हैं, इनको लगता है कि ये नई चीज है, जो नई चीज इफेक्टिव होगी वो आप तक पहुंचाते हैं, बताते हैं. बट एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अगर किसी पे बिलीव करना चाहते हो तो एज ऑफ नाउ believe in the government circulars, do not believe in news channels or social media posts only. Please get it verified. कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आता है कोई भी सोर्स से, आप उसे वेरीफाई कीजिए थ्रू गवर्नमेंट चैनल्स और थ्रू डॉक्टर्स. Without that, do not circulate or do not share. I'm Yes, sure that is doctor more will agree. important. आपको अगर कोई भी चीज, अब एक गाइडलाइन आ गई, हाँ ठीक है ना, पर उस पे आई है, पर आप आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कीजिए, हाँ बाबा इसमें मेरा क्या फायदा हो सकता है, ये कैसे है. Same way, government will give guidelines on that. ICMR is making, so it's all, they all are working hard on that. So they will give us. पर अपना जो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आपका जो प्रॉपर ट्रीटिंग डॉक्टर है जो इसमें नॉलेज है, आप उससे बात कीजिए,
और आप उससे कंसल्ट करें, आपको कोई भी क्वेरी तो आप आपके डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, खुले दिल से पूछ सकते हैं, पर ईच एंड एवरी डॉक्टर विल बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड आंसर योर क्वेरी. Right, right. Doctor, अभी कैसा है? When we were talking about vaccines, there are two dose vaccines. So is the efficacy based on every dose? Suppose अगर मैंने एक dose ले लिया, तो उसके बाद it makes me a bit safer, and after the second dose, it makes me more Yes. safer. Is that Yes. how? So as we have seen with the first vaccine, we will get around, say what India which have, so around say 60-70% तक हमें मिल जाएगा. So हम time देंगे थोड़ा सा. Then when we give a second dose, so this efficacy what we have, it will increase to around 90%, 80%. So for that we are using two vaccines right now. So जैसे यूके में, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया कि पहले हाफ वैक्सीन दिया फिर फुल वैक्सीन दिया. सो विद स्टडीज वी आर कमिंग अप, और ये जो है तो हमें पता चल रहा है कि दो वैक्सीन अच्छा काम करते हैं. फर्स्ट वैक्सीन के बाद 60% to 70% एफिकेसी आ जाएगी, सेकंड वैक्सीन के बाद 80 to 90% एफिकेसी आएगी. तो अभी 3 महीने का ड्यूरेशन किया है, तो बीच में और टाइम मिलेगा उसको ये करने के लिए. जैसे 3 महीने बाद अब हम वैक्सीन देंगे तो हमें और एक 2-3 महीने बाद हम अगर बात करेंगे तो हमें तब और पता चलेगा कि और कितनी एफिकेसी बढ़ गई है. सो ऑल दिस विल गो ऑन एंड सो फॉर. Right. Doctor, I mean, in the current, the variant, we've seen people having throat itching and irritation. Is that also part of, symptoms of COVID? Yeah. So first of all, COVID is a upper respiratory tract infection. So ये सर्दी है, मतलब अपना जो अपर नाक है, गला है, इसका इन्फेक्शन है और वो वहां से लंग में चला जाता है. Right. सो दैट इज अ बेसिक थिंग. तो जो ये सब शुरुआत होगी वो अपने सर्दी, बुखार, मतलब फीवर, कफ, कॉमन कोल्ड, रनिंग नोज, जनरलाइज वीकनेस, मलेज, मतलब बॉडी एक, हेड एक, ये सिम्टम के साथ ही चालू होगा. जैसे मुझे आई कैन नॉट स्मेल द थिंग्स, आई कैन नॉट, माय टेस्ट इज हैम्पर्ड, ये जैसे हमें पहले भी होता था सिंपल फ्लूज में, सेम सिम्टम के साथ ही चालू होगा. एंड देन इट्स, इफ यू हैव दैट, देन यू कंसल्ट एज यू अर्ली. जितना आप जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे उतना आपका डिसीज बढ़ने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि प्रॉपर उसका कंट्रोल किया जाएगा. तो प्रॉपर आपके इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे. जितना आप लेट जाओगे उतना आपको उसका कॉम्प्लिकेशंस होने की चीजें चांसेस ज्यादा होंगे. And even diarrhea is also one of the Yeah, so viral infections can cause diarrhea. So it's all the things. It's a viral infection, simple viral infection. Right. Now, there is also this news that is going on, doctor, that says, Covaxin has been excluded from the WHO list to meet the international travel criteria. So, is there any truth in this, doctor? मतलब सच है ये? No, I am not aware of that, to be frank. So okay, doctor. We will check on that. Sorry about that, but I don't know about that really. So if it is, then I will really convey. But I have not heard or not read. As I was for this lecture also, I have read some things today, yesterday, and recent guidelines also. But nowhere it was मेरे पढ़ने में कहाँ पे भी या फिर इसके लिए कहाँ पे मुझे ऐसे नहीं दिखा गया कि ऐसे कुछ चीज के लिए कोवैक्सीन एक्सक्लूड किया गया है. So I'm really not aware, but I have not read about that. So it might be a rumor. Now there is this एक antibody detection kit जो market में भी आया हुआ है, that is Dipcovan. So anything about that, doctor? थोड़ा, if you can share something about it. So there are many so अगर हम बात किए, if we talk about the testing, so first of all, so जब हमारा जो हमें पता, we should understand that how our antibodies will develop. पहले 7 दिन के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा antibodies. So after that, we will develop IgM, which will last for 21 days. Around 15 days, we will develop somewhere IgG, which will last for longer duration. जो ये हमारा immunity है, ठीक है. तो जब हम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं तो वो हमें 7 दिन के आगे का ही बता सकेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इट्स ग्रुप्ड वन, सो एंटीबॉडी IgG IgM मिक्सचर है. सो दैट विल नॉट, मतलब हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमारा इन्फेक्शन हो चुका है या हो गया है. तो IgM करते हो तो ही पता चलेगा. तो पर जो अगर आपको डायग्नोस करना है किसी भी चीज का, तो RT-PCR, पहले आपको अगर सिम्टम्स नहीं है, जस्ट स्क्रीनिंग करवाना है आपको, तो एंटीजेन टेस्ट करवाइए, नॉट एंटीबॉडी टेस्ट, एंटीजेन टेस्ट करवाइए. अगर वो निगेटिव है पर आपको सिम्टम्स है, तो आप RT-PCR करवाइए. वो आपको दैट विल गिव यू more specific results as and वो आपका
डायग्नोस्टिक फॉर डिसीज होगा, उसके हिसाब से आप ट्रीट कर पाओगे. Right. Okay, perfect, sir. And I mean, we've already answered that. There is still a question that has been asked that says, is the third dose of vaccine will act as a booster? So that we will know in the future. So that let us complete first 2 doses first in our country. Then let studies go on. Then we will find out with what immunity we will last with, and then we'll come with third dose or not. Then that is a different topic, and it will come in future with studies. So also, I mean, I think there is this repeated question that is asked, and I think I'll answer that. मधुमेह या hypertension के patients ले सकते हैं क्या vaccine? हाँ, ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं. प्लीज लीजिए, प्लीज आपको लेना जरूरी है, ऐसा बोलेंगे हम. पहले लीजिए आप. अगर ऑप्शन मिलता है तो पहले ये जाके आप वैक्सीन लीजिए, बिकॉज आपको ज्यादा चांसेस है इन्फेक्ट होने के या मतलब उसके एग्रीवेट होने के, बढ़ने के. तो आप पहले जाके लीजिएगा एंड सेफ रहिएगा. एंड सर, और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चनर में से ये पूछा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों के ऊपर ज्यादा असर करने वाला है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर ज्यादा ये इम्पैक्ट करेगा. स्टडीज मींस दे आर प्रेडिक्टिंग दैट. सो पर अभी तो जैसे आएगा, जैसे इन्फेक्शंस दैट टाइम ओनली विल क्लियरली कैन टेल अबाउट दैट. बट उसके लिए ही अभी बच्चों का वैक्सीनेशन पे भी उनका स्टडी चल रहा है. एंड सेकंड थिंग, वी आर प्रिपेयर, आवर गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग वेरी हार्ड फॉर दिस टू, मतलब पीडियाट्रिशियंस को या फिर उसके लिए सिस्टम्स प्रिपेयर अच्छे तरह से करके रख रही है. सो जैसे वो म्यूटेंट आएगा तभी हमें पता चलेगा. दिस ऑल आर प्रेडिक्शंस. जैसे हाँ, बारिश होगी, हमें पता है, जो हमें बता रहा है फोरकास्ट कि इट विल ऑकर, बट जैसे आएगी बारिश तभी हमें पता चलेगी कितना होगी. इन सेम वे, सो when it will come, we can predict, and we have to predict obviously, so that we can be aware, we can be ready to fight. So उसी तरह से we are ready to fight right now, we are getting ready to fight right now. So if it comes, then we can tell about how it infected, what it caused and everything. Right, doctor. Very well said. And I think while we come to the end of this beautiful session, I mean, a lot of doubts that even I had have got cleared. And since this initiative is initiated by a lot of partners, I would request everyone to please find the link of the feedback form. वो एक फीडबैक फॉर्म है जहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये सेशन आपके लिए जरूरतमंद रहा, क्योंकि मैं खुद भरूंगा, क्योंकि मेरे काफी सारे डाउट्स आज डॉक्टर ने क्लियर किए हैं. एंड डॉक्टर, the organization basically, which is kind of conducting this activity, they have a lot of other activities planned. That is, they have tree plantations, also in memory of the loved ones and COVID warriors who we lost during the pandemic. They're doing a small drive, and these are the activities which basically make people think that इंसानियत अभी भी जिंदा है. A lot of people in India are doing so much in different parts of the country. काफी लोग खाना दे रहे हैं. आप जैसे डॉक्टर जो अपना कीमती समय, after spending an entire day with the patients, you come and give it for us. I would like to thank you, sir. Thank you so much, because आज भी इंडिया में बोला जाता है कि डॉक्टर को भगवान और टीचर को भगवान. तो आज आप दोनों रूप में, एक भगवान के रूप में सभी को एक मार्गदर्शक जैसे रहे आज. तो आई वुड लाइक टू थैंक यू on behalf of the entire team of CDF Bharat, IMA, CGP Bhiwandi, Bansanga Mumbai's Bhiwandi to Badlapur region, and Ashna Cares. Doctor, thank you so much for coming here and enlightening us. Like to add something. So not only a doctor, a class 3 worker of the hospital, वो जो मामा मौसी होती है, वो सिस्टर्स हमारी जो होती है, उनके वजह से सब होता है. उनसे लेके डॉक्टर तक सब एक टीम वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में. सो इट इज गेटिंग पॉसिबल. वो लोग भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना एक डॉक्टर काम कर रहे हैं. सेम वे आवर policemen आर रियली वर्किंग हार्ड टू prevent people going out. So you have each and every field, people are, scientists are working to make new things. You people are working to create awareness. So it all will come together and give a good result. That is what needed at this point of time, and we will do it. We have to do it. Certainly, doctor, certainly. And as said, each and everyone, right from the top to the bottom, each and everyone count
from the person who is our watchman, from the person who's our maid, from the person who's doing all the small things and ensuring that we have a very better life. And people are working day. I mean, I see policemen, I see people from the municipality. I see a lot of people who've not taken a break since it started. In fact, doctors and your ward boys in your organization. So a small thank you note for all of them. In fact, also thank you to all those volunteers who are part of this entire session, who ensured that it was a seamless and a very enlightening session for all of you who wanted to know about vaccination. And I'm sure if there is any doubt, you can always reach out to us. And there are wonderful doctors like Kushal sir, who would always be there to help us all. Surely, certainly. Thank you so much, doctor. We've not Also, taken thank much of your time. to the organization for inviting me, and thank you everyone for listening me patiently. And it's good chance given to me to talk. Thank you very much. Thank you, doctor. We've been blessed to have this session. And please take care of yourself. And thank you so much and have a lovely day. Thank you, and same to you. Thanks, doctor.